Dear students, here is your lecture 15 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have discussed the following: introduction and types of functions, function prototypes, definitions, and function call. We have started function in the previous lecture, and we have discussed some of the basics, fundamental concepts of functions, including function types, function prototype or function declaration, function definition, and function call we have discussed in the previous lecture. In this lecture, we will learn the working of functions, how the function simply works, and we will do some programming practices regarding working of functions. Let's start from the working of function, how a function works. There are some fundamental concepts that must be cleared before starting the working of functions. The first one is program doesn't execute the statements in the function until the function is called. First of all, keep in mind that even though the function is declared, the function is defined, until or unless the function is not called, function will not execute its statements. To execute the function statements, it must be called. No program would execute the statements of the function until the function is called. So calling is important for the execution of the statements in the function. Secondly, when function is called, control is transferred to the called function, and when the function completes its working, control is transferred back to the calling function. जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है कॉल्ड फंक्शन में. जिस फंक्शन को कॉल किया गया उस फंक्शन की बॉडी में कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब फंक्शन अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है, इट मीन कि उसमें मौजूद जो स्टेटमेंट्स हैं जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कंट्रोल वापस उसी फंक्शन में आ जाता है जहां पे उसे कॉल किया गया था. तो इसमें इस बात का ख्याल रखें कि जो फंक्शन कॉल कर रहा होता है उस फंक्शन को हम कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं, और जो फंक्शन कॉल हो रहा होता है उस फंक्शन को हम कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं. सो व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, control is transferred to that function, and after the completion of the task or at the end of the statements of that function, control is transferred back to the calling function where the function was called. So the calling function would call the function, and the function which is being called would be सेट एज कॉल्ड फंक्शन. तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कंट्रोल वापस वहीं पे आता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया. तो फंक्शन जब कॉल होता है कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन में चला जाता है, कॉल्ड फंक्शन में चला जाता है, अपना काम मुकम्मल करके कंट्रोल वापस वहीं पे आता है जहाँ पे उसे कॉल किया गया था. नेक्स्ट, डाटा इज पास फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन to a called function by specifying the variables in the argument list. If you need to pass the data from the calling function to the called function,
You can do it by specifying the variables in the argument list. Over here, sum is being called and argument are x, y and z. This simply indicates that this sum function would pass the values of x, y and z. The value of x, y and z would be passed to this function sum. And this function is returning some value. That value would be assigned to this a. So the called function over here is sum, and the argument list x, y, z indicate that value of x, y and z is being passed. And if no data value or no data has to be passed, then while at the calling time, these parentheses would left blank or empty. None of the argument list would be there if no value is being passed. But if the values are being passed, then you can do this by using argument list in these parentheses. So over here, three values are being passed in the form of arguments x, y and z. The value of x, the value of y and the value of z is being passed to this function sum. And this sum function is returning a value, and the returned value would be assigned to the variable a. जब भी आप किसी फंक्शन में वैल्यू पास करना चाहें तो इस आर्गुमेंट लिस्ट में आप उन वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी वैल्यू पास करनी होगी. जैसे यहाँ पे x, y और z इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि सम फंक्शन कॉल हो रहा है और वो x, y और z की वैल्यू लेके जा रहा है, और जो वैल्यू सम फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहीं पे वापस आएगी और वो वैल्यू a को असाइन हो जाएगी. और अगर एक फंक्शन कॉल हो रहा है और वो कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा या कोई वैल्यू लेकर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम इन पैरेंथेसिस को ब्लैंक रहने देंगे. दैट वुड इंडिकेट दैट नो वैल्यू इज बीइंग पास्ड टू दिस फंक्शन सम. Then there is no limit on the number of functions present in the program. इस पे कोई आपके पास लिमिट नहीं है कि एक प्रोग्राम में आपने 4 फंक्शंस रखने हैं, 6 फंक्शंस रखने हैं, 10 फंक्शंस रखने हैं. यू कैन हैव नंबर ऑफ फंक्शंस इन योर प्रोग्राम. देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शंस. मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Any number of functions can be present in the program. A function can be called for any number of times. जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसे एक दफ़ा कॉल करेंगे, आप उसे 2 दफ़ा कॉल करेंगे या आप उसे 4 दफ़ा कॉल करेंगे. You can call a function for any number of times, and whenever you will call that function, the function will perform its duty or perform its task. So whenever you need to perform the task of that function, you do not need to rewrite the code of that function. Rather, simply call the function and the function will perform its task. So you can call a function for any number of times. Any function can be called from any other function. इसमें कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि कौन सा फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. कोई भी फंक्शन जो प्रोग्राम में मौजूद है वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. इवन एक फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है. और जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इस प्रोसेस को हम रिकरियन बोलते हैं. इसकी भी जब एप्लीकेशन आएगी तो मैं आपको करवाऊंगा कि देयर इज नो कंस्ट्रेंट. एनी फंक्शन कैन कॉल एनी अदर फंक्शन. इवन अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ.
So the process of calling a function itself is known as recursion. So let's start from the C++ program, the working of functions. In this code, we have declared two functions, Pakistan and England. You can use the term prototype or declaration. These both things are the same. Prototype and declaration are the same things over here. तो जब भी आपने कोई फंक्शन यूज करना है तो उसको यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे. तो जब हम फंक्शन की डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो आप उसे फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं. एक्चुअली declaration या prototype are basically used for the description of the function that is being used in the program. So over here we have two functions, Pakistan and England. Let's start from the term Pakistan. Void Pakistan void. The first void indicate that this Pakistan function is returning no value. If this function is returning some value, there must be some return type over here. For example, if we have int over here instead of void, that would mean that this Pakistan function is returning a value of type int. If we have float over here, that would mean that Pakistan is returning a value of type float. So when we have void over here, it means that this function is returning no value. And in the parenthesis, we have void, that simply indicates that no value is being passed in this function. So this description indicates that the Pakistan function is taking no value and returning no value. These void indicates that none of the value is being passed or being returned from this Pakistan function. Similarly, the other function named as England, it has the same description, void and void over here. The first void indicate that no value is being returned, and this void indicate that no value is being passed. So England also have the same description, that no value is being passed and no value is being returned. Void main void, इनकी डेक्लेरेशन हमने मेन से पहले की है ताकि कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर ले. ग्लोबल डेक्लेरेशन इसकी कर दी है हमने. क्लियर स्क्रीन. फर्स्ट स्टेटमेंट, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम इन फंक्शन मेन, ये प्रिंट होगा. उसके बाद पाकिस्तान, दिस इज योर फंक्शन कॉल, दिस इज योर फंक्शन कॉल. अब जब भी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में इस फंक्शन की डेफिनेशन सर्च करेगा कि वो किस जगह पे. तो वी हैव द डेफिनेशन ओवर हियर, void Pakistan void, and this is the body of this function Pakistan, and we have only one statement in this function, and that is cout I am in function Pakistan. So we have defined two functions, Pakistan, and we have defined another function England. Over here we have the declaration of Pakistan and England, and this is the definition of Pakistan, and this is the definition of England. Definition includes the task that is assigned to the function. जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी डेफिनेशन में मौजूद होंगी. तो ये पाकिस्तान की डेफिनेशन है और ये इंग्लैंड की डेफिनेशन.
एज ऑलरेडी स्टेटेड कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मेन में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, इट्स अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, स्क्रीन क्लियर करेगा। उसके बाद आई एम इन फंक्शन मेन, ये लाइन प्रिंट होगी। और उसके बाद ये पाकिस्तान की फंक्शन कॉल है। जब पाकिस्तान का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, बल्कि आपका कंट्रोल यहीं से जंप करके उस फंक्शन की बॉडी में एंटर हो जाएगा जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो यहां पे कंट्रोल एंटर होगा और इसमें मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक स्टेटमेंट है आई एम इन फंक्शन पाकिस्तान, उसके बाद बॉडी क्लोज मीन यहाँ पे आपके फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी फंक्शन कोई अपना टास्क कंप्लीट करता है तो वापस वहीं पे जाता है जहाँ पे उसे कॉल किया गया होता है। तो कॉल किया गया उसे यहाँ पे मेन में। तो मेन इज योर कॉलिंग फंक्शन एंड पाकिस्तान इज योर कॉल्ड फंक्शन। तो कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में जाएगा यहीं पे और इस कॉल के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई एम बैक इन मेन। उसके बाद गेट ch और क्लोज। यहां पे एक चीज वाजे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का फंक्शन डिफाइन किया है और उसको कॉल किया है, लेकिन इंग्लैंड का फंक्शन डिफाइन किया है बट उसे कॉल नहीं किया गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन जो डिफाइन किया गया उसे कॉल भी किया जाए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे कॉल ना करें। जो फंक्शन कॉल होगा स्टेटमेंट सिर्फ उसी की एग्जीक्यूट होंगी, जो फंक्शन कॉल नहीं होगा उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जैसे यहाँ पे इंग्लैंड मौजूद तो है, डिफाइन भी किया गया, डिक्लेयर भी किया गया, लेकिन अगर कॉल नहीं किया गया तो इंग्लैंड की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सिर्फ पाकिस्तान को कॉल किया गया तो जस्ट पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, जो फ्लो बनेगा वो इस तरह से है कि सबसे पहले आएगा आई एम इन फंक्शन मेन, देन पाकिस्तान की कॉल है, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा पाकिस्तान में, वहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, देन कंट्रोल वुड कम बैक टू द मेन, कॉलिंग फंक्शन में वापस आ जाएगा और उसके बाद आई एम बैक इन मेन, दिस स्टेटमेंट वुड रन। उसके बाद गेट ch एंड क्लोज। अब एग्जीक्यूशन आपकी हमेशा मेन से स्टार्ट होती है और मेन पे एंड होती है। तो यहाँ पे जब आपका मेन एंड हो जाएगा इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कोई और एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इंग्लैंड को कॉल नहीं किया तो इंग्लैंड अपना काम नहीं करेगा। चेक करेंगे इसका आउटपुट, देखें आई एम इन फंक्शन मेन, आई एम इन फंक्शन पाकिस्तान, आई एम बैक इन मेन। और यहाँ पे इंग्लैंड ने अपना कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हमने इंग्लैंड को कॉल नहीं किया। तो जब तक एक फंक्शन कॉल नहीं किया जाता, इवन दो कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो, जब तक उसे कॉल नहीं किया जाएगा तो वो अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेम वही डिस्क्रिप्शन है, दो फंक्शन है पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। यहाँ पे सबसे पहले आई एम इन फंक्शन मेन, उसके बाद पाकिस्तान का फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद इंग्लैंड का फंक्शन कॉल होगा, फिर आई एम बैक इन मेन एंड गेट ch। सो हमारे पास दो फंक्शन है पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, ये उनकी डेफिनेशन है पाकिस्तान और इंग्लैंड की। तो एग्जीक्यूशन आपकी मेन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो है वो स्क्रीन क्लियर करने के बाद आई एम इन फंक्शन मेन, देन पाकिस्तान फंक्शन इज कॉल्ड, control is transferred to the Pakistan function. So calling function over here is main. Main would call Pakistan. Pakistan is your called function. When this function is called, the control is transferred to the definition of the relevant function. Pakistan के function में control transfer हो जाएगा, इसकी statements execute करेगा और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके वापस वहीं पे जाएगा जहां पे इसे कॉल किया जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, दिस इज
अगेन अ फंक्शन कॉल, इंग्लैंड कॉल हो रहा है जी यहाँ पे, तो कंट्रोल अगेन ट्रांसफर हो जाएगा इंग्लैंड के फंक्शन, और यहाँ पे आई एम इन फंक्शन इंग्लैंड जो है वो डिस्प्ले करके फिर वापस जो है वो इंग्लैंड में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ वाजे करनी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि दो कंजेक्टिव फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन होगी और एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट वो इंग्लैंड में चला जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बल्कि पाकिस्तान का फंक्शन जब टास्क कंप्लीट कर लेगा तो कंट्रोल एक दफ़ा वापस जाएगा उसी जगह पे, कॉलिंग फंक्शन में जाएगा जहाँ पे उसे कॉल किया गया था, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कोई नेक्स्ट फंक्शन है तो फिर वो दोबारा उस फंक्शन में जाएगा और अपना टास्क परफॉर्म करके फिर वापस आएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आई एम इन फंक्शन मेन, फिर पाकिस्तान वाला काम आई एम इन पाकिस्तान, देन इंग्लैंड आई एम इन इंग्लैंड, उसके बाद फिर जब वापस आएगा तो आई एम बैक इन मेन। सो रिजल्ट चेक करें जी इसका, आई एम इन फंक्शन मेन, आई एम इन फंक्शन पाकिस्तान, आई एम इन फंक्शन इंग्लैंड एंड आई एम बैक इन मेन। तो वाज़ेह रहे कि जब भी एक फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करता है तो वो वापस कॉलिंग फंक्शन में उसी जगह पे दोबारा जाता है जहां पे उसे कॉल किया गया। तो जैसे पाकिस्तान ने अपना टास्क परफॉर्म किया तो वापस यहाँ पे गया और फिर इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, और अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल है तो फिर दोबारा आएगा उस फंक्शन। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फंक्शन टू फंक्शन जंप नहीं करेगा, बल्कि कॉलिंग फंक्शन में पहले वापस जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो दोबारा फंक्शन कॉल है तो फिर जंप करेगा उस फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर कर देता हूं मैं। फर्ज करें कि ये इंग्लैंड का जो फंक्शन है ये दोबारा आप पाकिस्तान के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसमें ये पाकिस्तान का फंक्शन दो दफ़ा कॉल करेंगे तो ये दो दफ़ा अपना टास्क परफॉर्म करेगा। आप इसे तीन दफ़ा कॉल करेंगे तो ये तीन दफ़ा अपना टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन जब जितनी दफ़ा भी आप इसे कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये खुद ही जो है वो अपने फंक्शन को बार बार जो है वो उसी में परफॉर्मेंस देता रहेगा, बल्कि अपना टास्क परफॉर्म करके एक दफ़ा कॉलिंग फंक्शन में वापस जाएगा और फिर दोबारा अगर वही फंक्शन कॉल हो रहा है तो फिर दोबारा एंटर होगा उसी फंक्शन में। तो अगर सेम फंक्शन भी एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल हो रहा है तो एक दफ़ा टास्क परफॉर्म करके कॉलिंग में वापस जाएगा और फिर दोबारा एंटर होगा। तो इस चीज़ का काइंडली ख्याल रखें। अब इसके बाद जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो लोग जावा में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या तरीकाकार है, तो याद रखें कि जावा में फंक्शंस के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड मेथड। तो सी प्लस प्लस में जो लोग काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल्स को फंक्शंस का नाम देंगे, कंपोनेंट्स या पार्ट्स को फंक्शंस का नाम देंगे, और जो लोग जावा में काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल्स को मेथड्स का नाम देंगे। तो याद रखें कि जावा में आपने टर्म फंक्शन यूज़ नहीं करनी, बल्कि जावा के लिए जो टर्म यूज़ होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज मेथड्स। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि मेथड क्या होते हैं, मेथड की क्यों ज़रूरत पेश आती है, मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉल या डेक्लेरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके वही हैं जो सी प्लस प्लस में। आपने फंक्शन या सॉरी मेथड जो है वो आपने डिफाइन भी करना है और मेथड को कॉल भी करना है। जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करेंगे आपका जो मेथड है वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो है फंक्शन कॉल का। तो जावा में मेथड को सॉरी फंक्शन कॉल नहीं,
फंक्शन डेक्लेरेशन। जावा में जब मेथड को आप डेवलप करते हैं या डिफाइन करते हैं या कॉल करते हैं तो उसके बाद उसको डिक्लेयर नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावा में मेथड डेक्लेरेशन डेफिनेशन के टाइम पे ही हो जाती है, आपको अलहदा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे या मेथड डिफाइन करेंगे तो वहीं पे आपकी डेक्लेरेशन हो जाएगी, आपको अलहदा से मेथड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है जावा में। सो दिस इज़ द डिफरेंस, प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि सी प्लस प्लस में आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जावा में मेथड्स को सेपरेटली डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, आपके डेफिनेशन में ही डिक्लेरेशन वाला काम हो जाता है। तो उसी तरीके से हमने मेन में एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन रखी है, आई एम इन मेन, उसके बाद पाकिस्तान का फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल पाकिस्तान के फंक्शन में एंटर हो जाएगा और यहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन में दो वर्ड्स एक्स्ट्रा आपको नज़र आएंगे, पब्लिक एंड स्टैटिक। व्हेन द मेथड इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, इट मीन कि कोई भी दूसरा मेथड इस मेथड को कॉल कर सकता है। व्हेन इट इज पब्लिक, it means that it is publicly available to all the methods in the program. So there is no access constraint over here. Its access is open. Any other method can call Pakistan when it is declared as public. So the public mean that this Pakistan method can be accessed by any other method in the program. The second word, static. This keyword mean that this method can be accessed without object reference. जावा में आमतौर पे जब भी आपने किसी मेथड को कॉल करना होता है तो वो जिस क्लास का मेथड होता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उसे कॉल किया जाता है। लेकिन जब आप उसे स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो आप उस मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को पब्लिक भी डिक्लेयर किया है, उसका मतलब यह है कि कोई दूसरा मेथड इसे एक्सेस कर सकता है, और स्टैटिक भी डिक्लेयर किया है या इंडिकेट किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तान है इस मेथड को विदाउट एनी क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसको कॉल किया जा सकता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपने इसे स्टैटिक डिक्लेयर कर दी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जी यहाँ पे आपको अलहदा से डेक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इसी वजह से कि इस फर्स्ट लाइन में आपने डिफ़ाइन करते हुए फंक्शन की सारी डिस्क्रिप्शन बता दी है, इसलिए यहाँ पे मेथड को सेपरेटली डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। C++ में भी इवन आप डेक्लेरेशन को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो ग्लोबली कर दें या उसे किसी हेडर फाइल में इंक्लूड कर दें, तो आप उसको प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल आपकी डेफिनेशन में ही डेक्लेरेशन आ जाती है। सो यहाँ पे दो चीज़ें आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है, एक मेथड कॉल और दूसरा डेफिनेशन। डेक्लेरेशन जो है वो डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आप इस मेथड पे फोकस करें कि अगेन मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, आई एम इन मेन, उसके बाद पाकिस्तान की फंक्शन कॉल है, कंट्रोल पाकिस्तान के फंक्शन में एंटर होगा या मेथड में एंटर होगा, इस मेथड में मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन में, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी एंड दैट इज़ आई एम बैक इन मेन। सो द सीक्वेंस वुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम इन मेन, दिस वन, ये इसका रिजल्ट आ रहा है जी आई एम इन मेन। उसके बाद दिस इज़ योर फंक्शन कॉल, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस मेथड में, पाकिस्तान मेथड में, वहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा यहीं पे। सो पाकिस्तान मेथड का जो रिज़ल्ट है दैट इज़ ओवर हेयर, आई एम इन पाकिस्तान। उसके बाद कंट्रोल जब वापस गया तो अगेन देयर वाज अ स्टेटमेंट आई एम बैक इन मेन। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ मेन, कॉलिंग फंक्शन की ये स्टेटमेंट है।
तो फिर दोबारा जो है वो आई एम बैक इन मेन जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मेन आपका कॉलिंग फंक्शन है, मेथड है, और पाकिस्तान जो है वो आपका कॉल्ड मेथड है। तो जब भी कॉल्ड मेथड जो है, जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र हो जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उस मेथड को कॉल किया गया। तो अगेन इस बात का ख्याल रखें कि जावा में आपने फंक्शंस की टर्म यूज़ नहीं करनी, बल्कि जावा में जो फंक्शंस के लिए term use होती है, that is methods. So Java student would definitely say that we are working on methods, and C++ students would say that we are working on functions. But actually both are the same thing. The concept behind method and function is same. Thank you very much.